Okay, so let us move ahead with next question. Question number 3. The relation, the relation connecting B, H and I in SI system is, यहाँ पे I मतलब magnetization है. Some books use MZ for magnetization and some books use I for magnetization. Some books will use only capital M for magnetization. तो आपको already पता है, you already know. What you know is total magnetic field is, you know this is mu H. You also know this is mu 0 into mu R. You also know it is mu R is 1 plus susceptibility. तो बाद में आप क्या करोगे, इस H को मल्टीप्लाई करोगे अंदर और ये आ जाएगा H into chi. और H into chi is magnetization. तो ये आएगा आपका इक्वेशन म्यू 0 H प्लस आई, म्यू 0 H प्लस आई, ऑप्शन नंबर सी. तो ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला था. यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ रॉड इज, आपके पास ससेप्टिबिलिटी है राइट, वो 299, और परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम मतलब म्यू 0 की वैल्यू आपको दी है 4 पाई इंटू 10 पावर -7. ओके, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज, एब्सोल्यूट मतलब आपको पूछा है व्हाट इज म्यू. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करने हमको. वाई? अभी अभी मैंने बताया म्यू इज म्यू 0 इंटू म्यू आर. तो म्यू इज म्यू 0 into mu r, और mu r is 1 plus chi, right? Mu 0 is 4 pi into 10 power -7 and chi is 299, so 1 plus 299. This is 4 pi into 10 power -7 into 300, right? You don't have to solve exactly क्योंकि 3771, 3771, 3771, 3771 सिर्फ 10 के पावर देखने हैं, राइट? तो अब ये दो जीरो यहाँ पे एडजस्ट करोगे तो 10 पावर -5, 4 इंटू 3, 12 इंटू 3 पॉइंट समथिंग आ गया क्या 3771. तो 37.71, 37.7 कैसे आया? 4 3 12 और पाई इज अगेन 3. तो दिस इज 12, दिस इज 3, 36. लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 होती है, हमने 3 डाला है तो 37 पॉइंट समथिंग, 37.71 इंटू 10 पावर -5 मतलब ये आ जाएगा आपका 3771. इसके दो 10 पावर मतलब 10 पावर -2 और 10 पावर -5, 10 पावर -7. ऑप्शन नंबर ए. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A solenoid has core of material with relative permeability 400. तो relative permeability mu r ये आपको दिया है 400. The winding of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. The windings, they are insulated and they carry a current of 2 ampere. If the number of turns is 1000 per meter, you need to pay attention here. Per meter मतलब आपको small n बताया है, not capital N. So this is small n, which is 1000 per meter. Calculate H and M. Calculate field intensity and magnetization. So finding out H is very simple क्योंकि H is nothing but n into I. n is 10 power 3000 और I is 2, मतलब ये आ जाएगा 2000 बेसिकली, राइट? तो सिंपल है, दिस इज 2000, राइट? तो दिस इज 1000 and into 2, 1000 and into 2, तो ये आपको मिल जाएगा 2000. तो H जो है वो तो हो गया आपका काम यहाँ पे. You have 2000. You can see 2 into 1000. ऑप्शन नंबर ए. The job is done. लेकिन wait a minute. यहाँ पे none of this is very near done, खत्म क्वेश्चन. बट वेट अ मिनट, हम एक काम करते हैं, हम ये क्या बोला है और मैग्नेटाइजेशन भी फाइंड कर लेते हैं. हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन इज बी. पता है क्या? नहीं. फिर व्हाई आर यू टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बी? व्हाट यू नो इज म्यू आर, बट इफ यू नो म्यू आर यू कैन फाइंड आउट काय.
कैसे? म्यू आर इज 1 प्लस काय, तो काय इज म्यू आर माइनस 1, 400 माइनस 1 कितना? 399. Once you know chi, do you remember susceptibility was ratio of magnetization upon field intensity? So susceptibility chi is ratio of mz upon h. तो mz आपको मिल जाएगा chi into h, मतलब 399 into 2000 into 2000. तो ये easy है. 399, 400 का डबल 800, 800 में से 2 गए, 798, 798 into 10 power 3. इन्होंने किया ही नहीं. They said okay fine. They have not written 7.98, but in reality it will be 7.98 into 10 power 5. Roughly 8 into 10 power 5. Option number A. वो तो इसी पे खत्म हो गया था वैसे. Once you find out H, you are done. Next question. An iron rod is placed parallel to magnetic field of intensity 2000 ampere per meter. The magnetic flux through the rod is 6 into 10 power minus 4 Weber, and its cross-sectional area is 3 centimeters square. The magnetic permeability of the rod in Weber per ampere meter is. ये CET में 2 बार आया है, 2020 and 2015. इजी क्वेश्चन है. आपके पास रॉड है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जिसका इंटेंसिटी मतलब H, वहां से समझ में नहीं आए तो एम्पियर पर मीटर इज H. तो आपको H वैल्यू दी है 2000 एम्पियर पर मीटर. मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू रॉड मतलब फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी नहीं है. अगर बोला होता मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड. मैंने कल ही बताया था फ्लक्स इज B into A, तो B इज फ्लक्स अपॉन A. तो याद रखना सिर्फ फ्लक्स बोला है यहाँ पे, नॉट डेंसिटी. तो फ्लक्स वैल्यू इज, और वेबर इज फ्लक्स आल्सो, तो 6 into 10 power minus 4 वेबर. क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन. क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर मतलब 10 पावर माइनस 2, और सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 10 पावर माइनस 4. तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आपको magnetic permeability is mu, not mu r, it is mu. तो mu पूछा है, सिंपल सा केस है. इट इज सिंपल. B equal to mu h, तो mu equal to B by h. But wait a minute, as I told you, flux is B into A, flux is field into area, therefore B is flux upon area, and therefore mu will be equal to flux. B की जगह पे flux upon area लिखोगे, flux upon area और H. You know flux? Yes. You know area? Yes. You know H? Yes. What is flux? 6 into 10 power minus 4. What is area? 3 into 10 power minus 4. What is intensity? 2000. 2000 को मैं 2 into 1000 लिखूंगा, 10 power 3. 6 और नीचे का 6 कैंसल, ये 4 और ये 4 कैंसल, 10 पर प्लस 3 ऊपर जाके 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A domain in ferromagnetic substance is in the form of a cube of 1 micrometer, side 1 micrometer. Okay, if it contains 8 into 10 power 10 atoms, and each atomic dipole has a moment of 9 into 10 power minus 24 ampere meter square, then the magnetization of the domain is. चलो क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन let us quickly revise what was domain theory of ferromagnetism. अगर आपको याद होगा, डिफरेंस हमेशा याद रखो, और इजी है. आपको ये याद होना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है. तो अगर आपको याद है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में देयर आर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम. तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे, तो एटम के पास ही डायपोल मोमेंट नहीं था, जीरो था. तो जब सब्सटेंस बनेगा तो कहां से आएगा? नहीं आएगा. फिर आप जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, तो इन दैट केस देयर इज टेम्पररी मैग्नेटिज्म. ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ऑड नंबर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रह गया अनपेयर्ड,
अब एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड रह गया, इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू डायपोल मोमेंट। मतलब ईच एटम इज लाइक अ टाइनी मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। बट अगेन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड नेट इज जीरो, क्योंकि ऑल दिस टाइनी डायपोल मोमेंट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। देन व्हेन यू टॉक अबाउट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मटेरियल में डोमेन्स होते हैं। एज यू रिमेंबर कि ये जो मटेरियल है इसमें डोमेन्स होते हैं, मतलब देयर आर रीजन्स, और हर एक रीजन में डायपोल्स आर ओरिएंटेड इन अ गिवन डायरेक्शन। इवन दो हर एक डोमेन का डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट इज डिफरेंट, लेकिन एक डोमेन के अंदर जितने भी डायपोल मोमेंट्स होंगे, ऑल दिस डायपोल मोमेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन को हमने बोला था डोमेन एक्सिस। सो इन अ गिवन डोमेन, यू सी, ये एक डोमेन हो गया, इसमें सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पे ये दूसरा डोमेन हो गया, ये और एक डोमेन है, ये और एक डोमेन है, सो ऑन सो फोर्थ। तो दिस वाज द सिचुएशन। हर एक डोमेन में जितने भी डायपोल मोमेंट्स है, दे आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन, राइट, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज कपलिंग। ये जो डायपोल मोमेंट्स होते हैं, दे आर कपल्ड, राइट, स्ट्रॉन्ग कपलिंग। अगर इसमें से एक ने भी डायरेक्शन चेंज किया तो सारे के सारे डायरेक्शन चेंज करेंगे, दे विल चेंज टुगेदर। अब ऐसा है कि ये है सिचुएशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इसको अगर एक वीक फील्ड भी मिल गया, अगर हमने इसको एक वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इवन इन दैट केस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कपलिंग, एक भी रोटेट हुआ तो वो सबको रोटेट करवाएगा, राइट। तो ऑल ऑफ दिस विल रोटेट, एंड देन बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस, all of the dipoles will be now pointing in the direction of the field. तो जब ये रोटेशन हो रहा है, तो जब ये रोटेशन होता है, उस केस में ये जो डोमेन वॉल्स होते हैं वो एक दूसरे को पुश करते हैं, एंड द वॉल्स ब्रेक, मतलब डोमेन स्ट्रक्चर टोटली कोलैप्स हो जाएगा। तो टोटली कोलैप्स हो जाता है, एंड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, all the domains they point in the same direction, that is the direction of the field. और बाद में अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया तो दे कैनॉट गो बैक टू देयर ओरिजिनल ओरिएंटेशन, एंड हेंस द सब्सटेंस बिकम्स परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। गुड। तो ये बेसिक थ्योरी था। वी डोंट रियली रिक्वायर ऑल दिस, जस्ट टू टेल यू। अब हमारे पास ये जो डोमेन है, ये छोटे छोटे जो डोमेन्स है, दे आर टेलिंग यू कि ये जो डोमेन्स है दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। ऐसा रैंडम शेप नहीं है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। तो डोमेन का वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल लोगे क्योंकि क्यूब है। हाउ डू फाइंड वॉल्यूम? लेंथ क्यूब। लेंथ कितना है? 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर मतलब 10 पावर माइनस 6 मीटर, इसका क्यूब मतलब 10 पावर माइनस 18 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम मिल गया डोमेन का। और क्या दिया है आपको? हर एक डोमेन में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स इज 8 इंटू 10 पावर 10। ओके गुड। और हर एक एटम का मोमेंट कितना है? मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 9 इंटू 10 पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपका पूछा है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन, हर एक डोमेन का मैग्नेटाइजेशन। इजी क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल। हाउ डू डिफाइन मैग्नेटाइजेशन? डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, बट डायपोल मोमेंट मतलब टोटल, ये याद रखना, एक एटम का नहीं, एक डोमेन में जितने भी एटम्स होंगे उसका। कितने एटम्स है? n। हर एक के साथ कितना है? m अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज n? 8 into 10 power 10। व्हाट इज m? m is 9 into 10 power minus 24। वॉल्यूम इज 10 power minus 18। 8 9 जा 72। हाँ ओके, सारे के सारे 7.2 है, करना पड़ेगा सॉल्व। दिस इज, ये ऊपर जाके प्लस होगा, 18 और 10 28। 28 में से 24 गए, 10 पावर 4। 72 into 10 power 4, 7.7.7.2 into 10 power 5। 3 नहीं, 5। 72 is 7.2 into 10, right? तो 72 is 7.2 into 10, और ऑलरेडी 10 पावर 4 था तो 10 पावर 5 होगा।
तो 7.2 into 10 power 5, ऑप्शन नंबर ए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोक 2019, angle between orbital angular momentum of electron with the direction of orbital magnetic moment is 180। क्यों 180? क्योंकि अगर आपको याद होगा डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू E by 2m into L, स्केलर नोटेशन। जब हम थ्योरी देख रहे थे तब मैंने बताया था इन वेक्टर नोटेशन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, in vector notation m bar is minus E by 2me L bar, because I told you कि m and L, dipole moment and angular momentum, are oppositely directed, so angle is 180. Done. Next question, the magnetization of a bar magnet of length 5 centimeter, length of bar magnet is 5 centimeter, मतलब 5 into 10 power minus 2 meter, area of cross section is 2 centimeter square, मतलब 2 into 10 power minus 4 meter square, net magnetic moment is 1 ampere meter square। नहीं, magnetic moment क्या पूछा है उन्होंने, मैग्नेटाइजेशन पूछा है और आपको मोमेंट दिया है। दे आर आस्किंग यू व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, कैन यू टेल मी? अब आप लोगों को ही बताना पड़ेगा। डायपोल मोमेंट पर यूनिट, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ रॉड? Volume of a rod. What is volume of a rod? Area into length, खत्म। एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ, m कितना दिया है? 1। वेरी गुड, हो गया क्वेश्चन सॉल्व यहीं पे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करोगे, यू सी a इंटू एल इज, ये आ गया आपका 10, 10 और 10 पर माइनस 2, 10 पर माइनस 1 और 10 पर माइनस 4, 10 पर माइनस 5, ऊपर जाके 10 पर प्लस 5 है क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is 2 into 10 power minus 4, length is 5 into 10 power minus 2, तो ये 10 power minus 2, ये 5 into 2 is 10, तो 10 power minus 1 और minus 4 minus 5, ऊपर जाके 10 power plus 5, खत्म। 2019। Next question, magnetic dipole moment of a short magnetic dipole। You have a short magnetic dipole, मतलब when you say short magnetic dipole, you need to know कि the distance between north and south pole is very small, so you have a short magnet। Okay, आपको बोला है you have a magnetic dipole, the magnetic moment of a short magnetic dipole at a distant point, dipole moment at a distant point along the equator। What is equator? अर्थ का नहीं, मैग्नेट का। What is axis of magnet? A line passing through both the poles. A line passing through both the poles is axis. What is equator? A line perpendicular to the axis passing through the center. This is equator of dipole, बार मैग्नेट का या फिर डाइपोल का इक्वेटर है, so this is equator, this is axis। आपको बोला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब m ऑफ अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब शॉर्ट बार मैग्नेट एट अ डिस्टेंट पॉइंट अलोंग द इक्वेटर ऑफ अ मैग्नेट हैज मैग्नीट्यूड x। यहाँ पे एक पॉइंट है P, मान लो ये डिस्टेंस है r, इस पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है x, ऐसा यूनिट्स में, एम्पियर meter square। Okay, if the distance between the point and the magnet is half, मतलब यही पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया P डैश, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका r by 2। तो r by 2 डिस्टेंस पे what is the magnitude of dipole moment? P पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट है x, P डैश पे डाइपोल मोमेंट कितना है आपसे पूछ रहे हैं। Why? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला
pole strength into distance between two poles, right? So it is independent of the point. वो डिपेंड करता है सिर्फ पोल स्ट्रेंथ पे और डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, राइट? आपने पोल स्ट्रेंथ चेंज किया, आपने ऐसा किया कि इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, नहीं, तो पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम. डिड यू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स? नो. हाँ, तो फिर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट. इक्वेटर पे कोई भी पॉइंट होगा, डजंट मैटर, कहीं पे भी होगा, डजंट मैटर, इट विल बी द सेम. तो यू नो दैट, you know, magnetic moment is equal to pole strength into 12. Here pole strength and 12 are both constants, therefore no change in magnetic dipole moment. So x will remain x. 2019 में था ये भी क्वेश्चन था, सिंपल. Next question number 7. Magnetizing field मतलब कौन सा? H की भी, H कितना वैल्यू है? 5000 एम्पियर पर मीटर. Produces a magnetic flux phi 4 into 10 power minus 5 Weber in an iron rod of cross-sectional area 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 0.4 into 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर, मतलब 4 into 10 power minus 5 मीटर स्क्वायर. The permeability of the rod is, you see, अभी ये किया था, phi upon AH. So same formula, phi upon AH. तो you have to use, क्या फाइंड करना है? mu is phi upon AH. phi आपको दिया है 4 into 10 power minus 5. Area of cross section is 4 into 10 power minus 5. H is 5000, मतलब 5 into 10 power 3. Simple. This is cancelling out. 1 by 5 is how much? 0.2. 0.2 into 10 power ये minus 3 हो जाएगा. That is 2 into 10 power minus 4. 2 into 10 power minus 4. Option number C. Next question. The magnetic moment of electron due to orbital motion is proportional to, principal quantum number is n. It is proportional to 1 by n square, 1 by n, or n square, or n. So can you tell me magnetic moment of electron is proportional to n? Is it proportional to n, where n is principal quantum number? What is, by the way, principal quantum number? What does it tell you? Number of orbit, मतलब कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो n को प्रोपोर्शनल होता है. What is the formula for magnetic moment of electron? हाँ, m NH upon 4 pi. वो बोहर मैग्नेटॉन था, that was बोहर मैग्नेटॉन. NH upon 4 pi me. It is not dipole moment. This is not magnetic dipole moment. That was बोहर मैग्नेटॉन 100%. Answer this question. Simple. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये क्वेश्चन मतलब इसका फॉर्मूला हमने 4 बार डिराइव किया है अभी तक, हियर इन सीईटी एंड दिस क्लास, जेईई क्लास. यू सी, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए, एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड nucleus acts as a current carrying loop, hence dipole moment is I into A. I is E, मतलब charge per unit time, and this is pi r square. और आपको पता होना चाहिए time period is distance upon speed. Distance traveled by electron in one time period is 2 pi r, circumference of this orbit.
तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2πr/v, v गया ऊपर, ये आ जाएगा आपके पास πr², ये और ये कैंसल, ये और ये भी कैंसल। तो यू शुड नो डायपोल मोमेंट इज EVR/2, नॉट पाई, पाई गेट्स कैंसल्ड आउट। अब आपको फ्यूचर में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी तक एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट नहीं किया है। जब आप एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट करोगे तो आपको पता लगेगा उसमें बोहर्स पोस्टुलेट्स, अकॉर्डिंग टू इफ यू अप्लाई बोहर्स पोस्टुलेट, आपको ये समझ में आएगा कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर, वेयर एज स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। So this is what you will learn in future, right? Radius of orbit of electron is proportional to n square, where n is principal quantum number and velocity is inversely proportional to n. तो ये आप आगे सीखोगे, अभी इसको याद रख लेना है। Now as you can see, mass here is proportional to v into r, क्योंकि E तो E है, that is constant, charge is charge, इलेक्ट्रॉन कौन से भी ऑर्बिट में हो चार्ज तो चेंज नहीं होगा उसका, चार्ज will remain the same। तो m is proportional to v into r, so m is proportional to v is proportional to 1/n, r is proportional to n, cancel and cancel, तो m is proportional to n, directly proportional to n, option number B, done। So here you need concept of two different chapters. So the same question can be solved via another method also. So this was method number 1. Method 1. You can solve the same question with method 2 also. अब ऐसा है, अभी अभी आपने यहाँ पे लिखा था somewhere dipole moment is E/2me into angular momentum. So you know m equal to E/2 times of mass of electron into angular momentum. Very good. Then E constant, me constant, मतलब dipole moment is proportional to L. But according to Bohr's postulate, you should know angular momentum of electron is nh/2π. बोहर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। सी द प्रॉब्लम इज, सबसे पहले एटम वाज कंसिडर्ड टू बी इनडिविजिबल। एटम का मतलब ही है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो एक्सीडेंटली सम साइंटिस्ट ऑब्जर्व कि इस एटम में से भी देयर आर सम चार्ज पार्टिकल्स कमिंग आउट, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कमिंग आउट। तो उसने बोला कि ऐसा नहीं है, एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नाउ he put up a new model of atom, उसमें उसने बोला कि atom is like plum pudding, hide and seek biscuit, खाया कभी? हाँ, वैसा ही है ये। ऐसा है कि एक आपके पास प्लम है, पॉजिटिव चार्ज का बेस है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, लाइक पीस ऑफ चॉकलेट इन दैट बिस्किट। ये पहला मॉडल था। Then what happened is, अगर ऐसा है तो basically how do they explain why there is radiation coming out from atom? Atom में से you know hydrogen atom में से you have series of lines, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pund, वहां से रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन होता है तो रेडिएशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कहाँ से आया, right? So this model failed to explain that spectra। फिर नया मॉडल आया, फिर रुदरफोर्ड का मॉडल आया। रुदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि एक काम करो, आप इस पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करो, राइट? अब अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसा एक स्फेरिकल शेप में है, मैंने इसके पीछे डिटेक्टर लगा दिया, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि बेसिकली सिर्फ हाई एंगल पे आपको डिटेक्शन मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से पास तो हो नहीं सकता, इट कैन नॉट पेनिट्रेट। इसका मतलब जो भी डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, ये पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन, तो आपको हाई एंगल पे पार्टिकल्स मिलने चाहिए। लेकिन इसका एग्जैक्टली उल्टा हुआ, यू गेट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हियर राइट बिहाइंड दिस। इसका मतलब ये भी गलत था। इसका मतलब ये है
कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से एक स्मॉल रीजन में है और उस रीजन को बोला न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स कहां गए फिर? इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। गुड, तो यहां तक ठीक। लेकिन फिर देन सम अदर साइंटिस्ट आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, अरे ओके चलो मान लिया यू आर राइट, बट टेल मी ये सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म है तो भी एक्सेलरेशन है। आपको पता है यूसीएल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होता है, इट इज टेंजेंशियल। और इसकी वजह से यहाँ पे एक एक्सेलेरेशन होता है विच इज सेंट्रिपिटल टुवर्ड्स सेंटर। अगर ऐसा है तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो, if there is acceleration, charge particles when they are accelerated, charge particles अगर accelerated है तो they emit radiation. Any charge particle when it accelerates, it emits radiation. If they emit radiation, they lose their energy, and if they lose their energy, electrons, they are accelerated and losing their energy, so they should slowly go into the न्यूक्लियस। ऐसा तो फिर एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। फिर रुदरफोर्ड मॉडल फेल्ड हियर। रुदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन, वो बोला नहीं सर्कुलर ऑर्बिट है, इट इज माय बिलीफ, फिजिक्स डजंट वर्क ऑन बिलीफ, यू हैव टू प्रूव। देन रुदरफोर्ड के आगे आया बोहर, ही पुट अप 3 assumptions, postulates. Number 1, yes, electrons are in सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट मतलब सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। कहां से आ रहा है? तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो पहला असम्पशन, सेंट्रिपिटल फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब mv² by r इज कमिंग फ्रॉम k q1 q2, ये भी e, तो e² by r²। नंबर 1। नंबर 2, वापस लोगों ने पूछा पर ये तो एक्सीलरेटेड मोशन है, राइट? मतलब इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड, मतलब इट शुड इमिट रेडिएशन, इट शुड लूज एनर्जी। तो बोला ऐसा नहीं है, देयर आर फ्यू ऑर्बिट्स, ऐसे ऑर्बिट्स है जो स्टेबल है, जहां पे इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो वो इमिट नहीं करेगा। तो दोस परमिटेड ऑर्बिट्स, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट nh/2π। So only those orbits are allowed, permitted. Electrons do not emit energy even though they are accelerated in orbits where angular momentum of electron, atom का नहीं, घूम कौन रहा है? Electron, it is nh/2π. So this is from where you get this second postulate of Bohr. Third I will not talk about, third हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। So you see m is proportional to L, L is proportional to N. So m is proportional to L, L is proportional to N, therefore m is proportional to N. Option number D. तो मेथड 2 ये भी आप कर सकते हो।